very good morning to you all. As the State Chairperson, Maharashtra Council CIMSME, I, Swapna More, would like to welcome you all for this session hosted by Maharashtra Council on understanding of government schemes for MSMEs by our esteemed guest speaker, Mr. Nilesh Trivedi, CIMSME, that is Confederation of Indian Micro, Small and Medium Enterprises, is a national network of more than 15,000 leading entrepreneurs. CIMSME enables business owners to learn from each other, leading to a greater business success as well as enriched personal life. CIMSME is globally recognized organization for unlocking the potential of MSMEs, startups, as well as women entrepreneurs. A research and process-driven organization with the motto of replacement of competition with collaboration. We provide industry's best practices through education while enabling collaboration, mentorship, peer-based learning, and the sharing of innovative ideas for entrepreneurs across the globe. With the mission articulated by our founder and director, Mr. Santosh Ganesh, which is to engage leading entrepreneurs to learn and to grow, to empower, collaborate, innovate, and stand together as true human beings and never to miss the human touch. CIMSME is moving ahead leaps and bounds as the fastest growing entrepreneur network, not only in India, but in the world. Now I would like to hand over to Mr. Sridhar Iyer, State President, Startup Innovation Cell, Maharashtra, to proceed with the event. Welcome everyone. It is my absolute honor today to introduce a guest of honor. Let's put our hands together as I welcome Mr. Nilesh Trivedi, who is the Assistant Director at Ministry of MSME, Government of India. He has over 25 years of industrial experience with reputed organizations starting with Ranbaxy, Nicholas Piramal, Asian Paints, and now he's a part of Government of India, Ministry of MSME. He joined Government of India in the year 1997 through Staff Selection Commission, and then through UPSC, got selected to the post of Assistant Director in the Office of DCM SME at Government of India, Ministry of MSME. He has served in various locations like Mumbai, Kolhapur, Indore, Bhopal, Delhi, and has deep insight and knowledge in guiding entrepreneurs in setting up their units by giving technical as well as managerial consultancy, as well as organizing various training programs, workshops, seminars for entrepreneurs, industry associations, students, and also organizing industrial exhibitions for MSMEs. He has given around 500 lectures in various training programs related to self-employment, schemes, innovation, IPR, export, and entrepreneurship, in which state, central government schemes, and enterprise motivations are his main topics. He has also delivered around 70 webinars from April 2020 to March 2021. In addition to all the above, he has also worked in Indore Special Economic Zone as Assistant Development Commissioner. So a man of multiple personalities, immensely talented. And today we are so fortunate that our audience are going to get to hear from him, especially our MSME brothers. And I wish that this becomes a very enriching session because I'm confident that Mr. Nilesh Trivedi is going to just share the right information that you've been looking forward to. So it's my absolute honor and privilege to hand over the virtual stage to Mr. Nilesh Trivedi. Welcome once again. Thank you. Thank you. I am audible to you, please confirm. Yes, you okay, are. Thank you. Thank you. First of all, I am thankful to CIMSME of Maharashtra unit for inviting me as a key speaker in understanding the government schemes for the MSME. This is the very important and burning topic between the minds of the entrepreneurs, associations, academics, and normal entrepreneurs. How government help to us. Government help in many ways, either through seminars, workshop, awareness programs, then procurement and marketing support, technology upgradation support. Government help in business
in exports, in intellectual property rights, and in delayed payments. But the problem is that normally people don't come directly to the government of India departments, state government departments, and bank officials. This is the biggest problem. To overcome this, these initiatives is very good by the associations, and such type of seminars, webinars, interactive meeting should be done on regular basis. Then only we will get how this thing. In India, around 6 crore 34 lakh MSME units are working. Out of this 6 crore 34 lakh MSME units, only 15% are registered. This is the biggest problem. What is the meaning of it? It means केवल 15% बैंक तक पहुंच पाते हैं लोन के लिए, केवल 15% सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स को फायदा ले पाते हैं। बचे हुए 85% क्या करते हैं? बचे हुए 85% जो हैं वो फ्रेंड्स, फैमिली, महाजन, साहूकार 18% से 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरोइंग करते हैं और अपना इंडस्ट्री चलाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस गैप को फिल करना है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट registration portal of Government of India, Ministry of MSME. Otherwise, if you go to another website, private website, they will charge you from 1815 rupees to 2,500 rupees, 5,000 rupees, 10,000 rupees. Depends upon how you are ignorant. On our portal, your Udyam registration is totally free of cost. Not a single paisa you has to provide him. And after that Udyam registration, you are eligible for getting benefits either from bank, either from financial institutions, either from state government, either from central government. So friends, you are requested to do your Udyam registration first. This will be done with the help of your Aadhaar card, PAN card. If you are existing entrepreneur, then your income tax return of last 3 years, and your employment, investment, and your production activity or manufacturing activity, service activity. And now recently Government of India has introduced traders can also get registered with Government of India, Ministry of MSME through Udyam registration portal. But friends, please keep in mind this thing, that traders are only for priority sector lending. No other benefit for traders will be given by Government of India. So only priority sector lending. India में 7.5% priority sector lending prescribed है as per RBI, और उसमें MSMEs already थे. Now traders are भी इसमें include हो गए. अब इंडस्ट्री को हमें MSME सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है? MSME is the backbone of Indian economy. कैसे backbone है? It provides employment to 11 crore 75 people. We are second employment generator after agriculture sector. We have just beat textile sector. Then export में contribution 48%. और यहाँ पर मैं एक बहुत important आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट में MSME का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है. रीजन, हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन, MSME रजिस्ट्रेशन, DTIC रजिस्ट्रेशन, SSI रजिस्ट्रेशन मेंशन नहीं है. तो ये एक्सपोर्ट निकलता कैसे है MSME से? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है. तो इसमें ECGC कहता है कि साहब यदि 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टर्नओवर है तो वो माइक्रो या स्मॉल है. एक्सिम बैंक कहता है कि 5 to 10 करोड़ के बीच का एक्सपोर्ट टर्नओवर है तो वो जो है अपना माइक्रो स्मॉल होगा. जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 26 जून 2020 को एक नोटिफिकेशन के द्वारा MSME को रीडिफाइन किया है. MSME डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट जो कि 2006 में था उसको डिफाइन किया है. और अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन, इफ इन्वेस्टमेंट इज बिटवीन 1 crore
and turnover is up to 5 crore, then it is termed as micro enterprise, and export turnover is not been included in this turnover. So you do your export and forget about your chances of losing of your MSME status. Then small industries, investment is 10 crore in machines and turnover is 50 crores. And for medium enterprise, investment is 50 crore and turnover is 250 crore. Now, investment what comprises? Only plant and machinery, no cost of land, building, R&D equipment, firefighting equipment, safety equipments are included in the list of eligible list of plant and machineries. So please keep this in your mind. And around 45% manufacturing output came from MSME, and around 31% contribution of GDP contribution by MSME sector. Out of these 31%, 6.1% came from manufacturing MSMEs, and remaining 24% came from our predominantly service sector. And service sector is the most emerging, rising and developed sector of India. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई आपको किस प्रकार से हेल्प करता है? जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तब आपको अपना फंड्स के यूनिट एस्टैब्लिश करने के लिए फंड्स का रिक्वायरमेंट होता है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनेक many schemes are run by government of India. First scheme is Prime Minister Employment Generation Program. This is called as PMEGP. Under this PMEGP scheme, government has provided through state government and KVICs that 25 lakh loan for manufacturing sector and 10 lakh loan for service sector. Trading sector are not allowed PMEGP. It is the only subsidy scheme run by government of India. Under this scheme, if you are a woman entrepreneur, then you will get 25% subsidy in urban area, and in village area you will get 35% subsidy on your loan of either 25 lakh or 10 lakh. And if you are a male entrepreneur of general category, then your subsidy will be 15% in urban area and 25% in village area. Other community which is equivalent to women are minority, OBC, SC, ST, physically handicapped and ex-servicemen are also eligible for getting special concessions, that is 25% subsidy in urban area and 35% subsidy in village area. It is to be applied on online through PMEGP portal. You have to submit a project report, and the loan tenure is 7 years. And if bankers asked, please submit collateral guarantee, then you inform that up to ₹10 lakh loan, there will be no guarantee should be demanded by the banks as per RBI instructions. And beyond 10 lakhs, one can go through our scheme, that is CGT MSE scheme, Credit Guarantee Trust for Micro Small Enterprise. ये स्कीम बहुत अच्छी है. इसके बारे में बैंकर्स को भी कम मालूम होता है और एंटरप्रेन्योर्स को भी कम मालूम होता है. इसमें जो फंडिंग है वो 10 लाख to 2 करोड़ तक का जो लोन है वो इसमें कवर हो जाता है, और इसमें कोई कोलेटरल गारंटी जो है नहीं देना पड़ती है. 75% गारंटी कवर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यदि वुमन एंटरप्रेन्योर हैं तो 85% गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कवर करता है. तो कल से यदि आप बैंक में जाते हैं तो कहिए साहब CGT MSE स्कीम से, और उनसे कहिए मत, आप राइटिंग में अपना प्रपोजल सबमिट कीजिए CGT MSE पोर्टल पर. तो एक उड़ान पोर्टल है वो CGT MSE के लिए ही है. इसके अलावा एक उद्यमी मित्रा पोर्टल है, वो भी गवर्नमेंट स्कीम्स के जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है उसके लिए रहता है. तो CGT MSE PMEGP. Then next scheme is Prime Minister Mudra Yojana. Prime Minister Mudra Yojana, 50,000, 5 lakhs and 10 lakhs, 3 categories में for 3 activities: manufacturing, service or trading. Only 3: manufacturing, service and trading. ये न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए होता है और इसमें कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ता है. ऑनलाइन अप्लाई होता है और बैंक्स की डायरेक्ट वेबसाइट पर भी हो जाता है, एंड
साथ में आप उद्यमी मित्रा पोर्टल से भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड स्कीम इज फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड SC/ST एंटरप्रेन्योर्स. The scheme is Stand Up India scheme. Under this scheme, one can avail loan from 10 lakhs to 1 crore. There and the government provide loan up to the range of 85%. 15% you have to submit as a margin money. So 85% loan will be granted through this scheme. And this scheme is only for two category people. Number one, woman entrepreneur, and number two, one SC or one ST per bank branch. There are 1.25 lakh branches in India, and around 2.5 lakh proposals should be cleared by banks. This is the instruction of Government of India. And this scheme is also have very good performance. Around 1.25 lakh crore has been disbursed since its inception. Now, another very good scheme for innovation. आप तो जानते होंगे, you know that India का जो innovation में इंडेक्स में एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है जो कि वाइपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है. अकॉर्डिंग टू देम इंडिया का अभी 48th पोजीशन है. 5 years बैक हम लोग 82 to 83 पोजीशन पे थे. तो इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 स्कीम्स लॉन्च की है. नंबर 1 स्कीम है MSME का बिजनेस इंक्यूबेशन स्कीम, जिसमें आपके पास कोई आइडिया या प्रोडक्ट है, आइडिया है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपको 15 आपका आइडिया सिलेक्ट होता है तो आपको 15 lakhs का फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ MSME से मिलता है. और यदि वो आइडिया का कमर्शियलाइजेशन भी किया जा सकता है तो एडिशनल 1 crore का ग्रांट एडिशनल है. जो होस्ट इंस्टीट्यूशन है या बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं, ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन या आपका जैसा इंडस्ट्री एसोसिएशन भी हो सकता है. CIMSME एज ए बिजनेस HIRBI के रूप में अप्लाई करें MSME के बिजनेस इंक्यूबेशन पोर्टल पे. यदि वो HIBI के रूप में अप्रूव होते हैं तो वो आइडिया ले सकते हैं किसी भी इंडियन सिटीजन से. ये कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. यदि स्टूडेंट है तो ग्रांट 100% है, और यदि MSME है तो ग्रांट जो है 85% है. 75% है, 25% will be borne by respective MSME owner. तो लेकिन स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है तो पूरा 100% ग्रांट है. तो ये बहुत, और उसमें जो होस्ट इंस्टीट्यूशन और बिजनेस इंक्यूबेटर हैं उन्हें 1 crore का ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलता है. तो 1 crore का ग्रांट HIBI टू क्रिएट R&D इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और 15 lakhs का पर्टिकुलर इंक्यूबेटिव को आइडिया को प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मिलता है. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को भी लॉन्च किया है. इसमें 20 lakhs का फंडिंग है फॉर आइडिया टू कमर्शियलाइजेशन, आइडिया टू प्रोटोटाइप डेवलपमेंट. कमर्शियलाइजेशन के लिए 50 lakhs है, वो भी थ्रू HIBI के द्वारा होता है. तो ये जो स्कीम्स हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट कर रही है और इनोवेशन को भी प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स. फिर स्टार्टअप इंडिया ये 2016 में लॉन्च हुआ था. इसके बाद अभी आज एज ऑन डेट 42,000 स्टार्टअप्स आर रजिस्टर्ड ऑन स्टार्टअप इंडिया पोर्टल. ये जो काफी अच्छा इनिशिएटिव है और हमारे कई यूनिकॉर्न बने हैं MSMEs. तो ये एक इसका फायदा लोगों को लेना चाहिए. स्टार्टअप में रजिस्टर्ड करें थ्रू स्टार्टअप पोर्टल, और आपका HIBI यदि हो जाता है तो आप खुद भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, क्योंकि आप एक रजिस्टर्ड गवर्नमेंट इंक्यूबेटर बन सकते हैं. देन स्टार्टअप इंडिया में वेंचर कैपिटल आपका फंडिंग कर सकता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10,000 crore रुपीस का फंडिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. इसमें आपको लेबर लॉ और एनवायरमेंटल लॉ सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस पे क्लियरेंसेस हो जाएगा. देन आपको इनकम टैक्स जो है वो बेनिफिट है 3 years का. फर्स्ट 7 years में किसी भी 3 years में आप उस इनकम टैक्स में बेनिफिट सकते हैं. कैपिटल गेन टैक्स का भी बेनिफिट है. तो ये स्टार्टअप इंडिया बड़ी अच्छी स्कीम है, इसका बेनिफिट लेना चाहिए. तो ये सारी स्कीम्स मेनली गवर्नमेंट की जो प्रमोट करने की. इसके बाद जब आपकी इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है तब, जैसे मैं मेरे मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, आपके महाराष्ट्र में भी ऐसी स्कीम होगी. यदि कोई एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट लैंड या आउटसाइड म्युनिसिपल एरिया, विलेज एरिया में MSME यूनिट एस्टेब्लिश करता है
तो उसका बिल्डिंग, सिविल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड जो मशीन्स हैं उस पर 40% का सब्सिडी है। तो यदि 10 करोड़ का आपने इन्वेस्टमेट किया है तो 4 करोड़ यू विल गेट एज अ सब्सिडी इन 4 years। 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, ऐसा 10% कंट्रीब्यूशन, 10% 10% 10% 10% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो ये एक बहुत अच्छा है। हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक पॉलिसी और स्कीम होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी कई पॉलिसीज और स्कीम्स हैं। जैसे हमारा एक आपके ही इंस्टीट्यूशन के लिए एस्पायर, अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन एंड रूरल इंडस्ट्रीज। ये जो एस्पायर स्कीम है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 करोड़ एज ए ग्रांट देता है फॉर क्रिएटिंग अ कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस, या आप कोई स्किल बेस्ड इंस्टीट्यूशन डेवलप कर सकते हैं। इसमें यदि एजेंसी गवर्नमेंट है तो 1 करोड़ पूरा 100% मिलता है, लेकिन यदि प्राइवेट एजेंसी है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, इंस्टीट्यूशंस हो, टेक्निकल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, तो उन्हें 50% का ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलता है। तो ये एस्पायर स्कीम है। देन फॉर विलेज एरिया के यूथ के लिए स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। इंडिया में ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का काफी इंपॉर्टेंस रहा है। हर एरिया में, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ ट्रेडिशंस रहे। वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के लिए स्फूर्ति स्कीम है, वो क्लस्टर बेस्ड है। उसमें यदि 500 आर्टिसियंस यदि वर्क करते हैं तो उन्हें 2.5 CR का फंडिंग है, और वो भी आपका इंस्टीट्यूशन उसमें ऐसे इम्प्लीमेंटिंग या नोडल एजेंसी बन सकता है, और नोडल एजेंसी बन के फंडिंग जो है गवर्नमेंट आपके द्वारा रूटेड किया जा सकता है। देन यदि वो 500 से ज्यादा आर्टिसंस हैं, कोई हैंडीक्राफ्ट है, कोई हैंडलूम है, कोई रबर है, कोई लेदर है, कोई प्लास्टिक है, कोई आपका कोई भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, पापड़, अचार, बड़ी इस टाइप की इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं, तो उसमें यदि 500 से ज्यादा आर्टिसंस या वर्कर्स हैं तो 5 करोड़ का वो स्कीम है। तो ये तो हमारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए है। लेकिन यदि आपका कोई प्रोजेक्ट बड़ा है तो हमारी एक स्कीम है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, MSC-CDP। MSC-CDP में 20 करोड़ का फंडिंग है, और इसमें ग्रांट है, ग्रांट इज 90%। It means 18 crore will be borne by Government of India. Only 2 crore will be borne by respective special purpose vehicle and state government. इसमें क्या होता है साहब कि आप स्टेट गवर्नमेंट से आप लैंड बोलोगे कि साहब हमें ये लैंड दे दीजिए, हम ये मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर या सर्विस बेस्ड क्लस्टर का भी अप्रूवल हो गया है, अब तो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस बेस्ड क्लस्टर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट लैंड देगा, उसका स्टेक लैंड के रूप में होगा। आपको मिनिमम 20 लोगों का SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाना पड़ेगा, सेक्शन 8 कंपनी। आप मेंबर्स 500,000 भी रख सकते हो, लेकिन 20 जो SPV मेंबर्स है वो मैंडेटरी है, जिनका उद्यम रजिस्ट्रेशन हो। तो इसमें आपको क्लस्टर में मिलता क्या है? क्लस्टर में आपको मिलता है कॉमन इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग सेंटर, कॉमन डिजाइन सेंटर, कॉमन R&D सेंटर, कॉमन पैकेजिंग सेंटर, क्वालिटी कंट्रोल सेंटर, टेस्टिंग सेंटर, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये स्कीम्स के मीडियम थ्रू आप जो है अपना एक बहुत अच्छा क्लस्टर जो सिमिलर टाइप की इंडस्ट्रीज हैं उसमें डेवलप कर सकते हैं। चाहे इंजीनियरिंग क्लस्टर करें, फूड क्लस्टर करें, रबर क्लस्टर करें। जैसे पौंडीचेरी में एक क्लस्टर है चंगनचेरी में, वो है इसका स्लीपर्स का। तो वो स्लीपर्स जो है उन्होंने मशीन बना रखी है, एंटरप्रेन्योर आता है उस मशीन का फैसिलिटी का यूज करता है। क्योंकि साहब क्या होगा कि MSME एंटरप्रेन्योर कितना पैसा लगाएगा मशीन टेस्टिंग मशीन में, R&D में, डिजाइन में, तो ये सब फैसिलिटी एक ही प्लेस में मिल जाएगी, कॉमन फैसिलिटी। तो ये क्लस्टर का स्कीम आप जरूर करें। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को आपको अप्लाई करना पड़ता है, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपको मिलता है। अब आपके सामने एक चीज ये भी हो सकती है कि आप कहें कि साहब इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट उस इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट के लिए हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम है 10 करोड़ की, जिसका 60% फंडिंग विल बी बोर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिमेनिंग 40% बोर्न बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो है 60-40 के रेशियो में आप एक इंडस्ट्रियल एरिया जिसमें पावर, वाटर, कम्युनिकेशन, ड्रेनेज, ये सब अरेंजमेंट करवा सकते हैं इस स्कीम से। तो ये अभी तक मैंने आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स की स्कीम बताई है।
अब procurement and marketing support is the very biggest support by Government of India. Under our PMS scheme, procurement and marketing support scheme, any micro small entrepreneur can participate twice in a year in any domestic exhibitions. If exhibition is occurred in metro city, then reimbursement of 1.5 lakhs towards airfare, stall charges, and freight and publicity. If exhibition occurred in Pune or in Kolhapur or in Nagpur, then reimbursement rate will be 1 lakh. But it is if exhibition is very tier C city, say Satara, then you will get 80,000 reimbursement under procurement and marketing support scheme. This is for domestic exhibitions. But if, and this is in a group only, means I want minimum 10 unit delegation minimum for participation in domestic exhibition. Then your association can also recommend that names also. And our next scheme is international cooperation scheme. This is a very good scheme and it is recommended by respective industry association like you only. आपके मेंबर्स को यदि इंटरनेशनल, हम लोग 700 फेयर्स में इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करते हैं, आपको उस अप्रूव्ड फेयर की लिस्ट में आपको यदि पार्टिसिपेट करना है तो आप आपके 10 मेंबर्स का डाटा विद उद्यम रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन ic.msme.gov.in जो वेबसाइट है उस पर जाके आपको ऑनलाइन एसोसिएशन को ऑनलाइन करना पड़ता है, सिलेक्शन भी एसोसिएशन को करना पड़ता है, 60% मार्क्स एसोसिएशन देता है, उसी वही यूनिट एलिजिबल होता है। इसमें हम लोग 5 lakhs का फंडिंग करते हैं, 3 lakhs फॉर स्टॉल, 1.5 lakhs फॉर एयरफेयर एंड 50,000 फॉर फ्रेट। एंड फॉर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज 75,000 फ्रेट रेट रहता है, रेस्ट रिमेनिंग आर सेम। तो ये इतनी अच्छी स्कीम से आई हैव सेंट अराउंड 45 पीपल फ्रॉम मध्य प्रदेश to various locations of the globe like South Africa, China, Germany, Italy, Greece, Nigeria, Malaysia through our international cooperation scheme. बस इसमें यह है कि आपको 10 लोगों का सिलेक्शन, मिनिमम 10 लोगों का ग्रुप रहना चाहिए। मैंने हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट वाले और इसमें मेरे जो 45 है उनमें 80% महिलाएं हैं और वो लोग बहुत छोटा छोटा बिजनेस करते थे। कोई हैंडीक्राफ्ट बना रहा है, कोई लेदर पर्स बना रहा है, लेदर बेल्ट बना रहा है, रेडीमेड गारमेंट्स में है, कुछ फार्मास्यूटिकल मशीन्स वाले भी गए थे, कुछ पैकेजिंग मशीन्स वाले भी गए थे। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसका आप बेनिफिट लीजिए ताकि आप इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करें। देन हमारी प्रोक्योरमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अराउंड 1,50,000 crores has been procured by Government of India. Out of this 1,50,000 crore, हमारा 25% पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है। इसमें जो भी गवर्नमेंट खरीदेगा उसका 25% माइक्रो और स्मॉल, मीडियम नहीं है, इसमें माइक्रो और स्मॉल सेक्टर को से ही लेना है और माइक्रो और स्मॉल सेक्टर से लेना है 25% जो है ऑर्डर। लेकिन साथ में इसमें रिजर्वेशन और है। आउट ऑफ 25%, 3% are reserved for women entrepreneur and 4% are reserved for SC/ST entrepreneur. So presently women entrepreneurs and SC/ST entrepreneur only 0.4 to 0.6% participate कर पा रहे हैं, only 0.4 to 0.6%। तो ये इंक्रीज हमें करना है ताकि वो उनका जो रिजर्व परसेंटेज है वो पहुंच जाए वुमन एंटरप्रेन्योर्स का और SC/ST एंटरप्रेन्योर्स का। इसमें हम बेनिफिट क्या देते हैं? आपने यदि टेंडर में अप्लाई किया तो टेंडर में आपको एग्जम्पशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ अर्नेस्ट मनी, जो धरोहर राशि होती है वो जमा करने की जरूरत नहीं है, फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और साथ में परचेस प्रेफरेंस मिलता है। कोई यदि लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर 100 रुपीज में कोट कर रहा है और आपने 114 में कर दिया है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब यदि आप 100 में दे सकें L1 जो लार्ज है तो हम चीज को वो ऑर्डर दे देते हैं। और ये हर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के लिए मैंडेटरी है। आपको कोई मना करे तो आप बता दीजिए। हमारा एक आप सबके लिए मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, एक हमारा चैंपियन पोर्टल है champions@gov.in। आपकी कोई भी प्रॉब्लम MSME की हो, चाहे फंडिंग की हो,
चाहे नॉलेज की हो, चाहे आपको सब्सिडीज, कंसेशंस या कोई डिपार्टमेंट्स प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप इस पर अपना ग्रीवेंस विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे तो आपको उसका रिजोल्यूशन के लिए हम लोग खुद उसमें प्रयास करते हैं। तो 25% ये भी बहुत अच्छा है। एक 356 आइटम का लिस्ट रिजर्व्ड है। ये आप सब चीजें आपको सीपीपी पोर्टल पे टेंडर मिल जाएंगे या eprocure.gov.in पर आपको टेंडर्स का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आप चाहे तो हमारा एक सिस्टर कंसर्न है NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, उसमें आप रजिस्टर्ड कर लीजिए अपने आप को, तो आपके प्रोडक्ट्स के हिसाब से जो टेंडर आते हैं वो आपके मेल पर आ जाया करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा स्कीम है। साथ में आपको 356 आइटम का लिस्ट है जो केवल माइक्रो और स्मॉल ही बना सकता है, लार्ज स्केल उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता है। जैसे रेलवे की बेडशीट्स हैं, रेलवे बहुत सारी चीजें बनाता है जो हम केवल माइक्रो स्मॉल से ही लेता है। तो वो 356 आइटम की लिस्ट भी हमारा जो MSME का एक पोर्टल है mymsme.gov.in, हमारे सारी स्कीम्स, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ MSME हो, KVIC हो, NSIC हो, कोयर बोर्ड हो, है ना, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट सेंटर हो, MSME DI हो, सारी स्कीम्स उसमें वहां पर है। हर एंटरप्रेन्योर ऑनलाइन कर सकता है और आपको हमारे ऑफिस में भी आने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रोक्योरमेंट और मार्केटिंग सपोर्ट है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए भी काम किया है कि डिफेंस के अराउंड 219 प्रोडक्ट्स को जो है उन्होंने पूरी तरह से एम्बार्गो लिस्ट में डाला है, मतलब इंपोर्ट नहीं होना है, और वो हम हमारे MSCs मैन्युफैक्चरर से ही प्रोक्योर करेंगे। और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का भी इस प्रकार से काम चल रहा है। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं ये तभी होगी जब आप यूनाइटेड होंगे, आपको फंड्स मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट और स्कीम मिल रहा है। इसके अलावा एक हमारे MSME सबसे बड़े लैकिंग है, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। हम लोग अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं, हमारी इंडस्ट्री का नाम भी रखते हैं, पर उसका ट्रेडमार्क नहीं लेते हैं। ट्रेडमार्क कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आप यदि थोड़ा सा वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स को थोड़ा सा सर्च करेंगे तो एक बहुत अच्छा केस स्टडी जो इंदौर बेस्ड यूनिट का है, मॉस्किटो रिपेलेंट नेट जेट, ये 1987 में 27 लाख से मिस्टर मतलानी ने स्टार्ट किया था। उन्होंने अपना बैंक का क्लर्क का जॉब छोड़ के ये काम किया था। 1995 में उनके इस पूरे जेट के ब्रांड को गोदरेज ने खरीदा 30 करोड़ में। 27 लाख टू 30 करोड़ सिर्फ नाम खरीदा है और कुछ नहीं खरीदा है, क्योंकि वो जो नाम है इसका बड़ा महत्व है। आपके हमारे जो फिल्म स्टार्स हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर हों, उन्होंने अपने नाम का ट्रेडमार्क ले रखा है, सचिन रमेश तेंदुलकर SRT। शाहरुख खान ने SRK ट्रेडमार्क ले रखा है। आप यदि SRK एकेडमी कर खोल के कुछ फीस ले रहे हैं तो शाहरुख खान जी को रॉयल्टी देना पड़ेगी आपको। अक्षय कुमार ने अपनी खिलाड़ी फिल्मों की सीरीज आई थी तो खिलाड़ी कुमार नाम से अपना ट्रेडमार्क ले लिया है, ताकि कल से कोई इसका नाम खिलाड़ी कुमार यूज ना कर सके। तो ये लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि इनको इनके नाम का बड़ा महत्व है। कल से किसी ने कुछ टॉर्निश कर दिया, कुछ इमेज टॉर्निश हो सकती है, किसी ने इनके नाम का मिसयूज किया और इनके नाम पे कोई क्रिकेट एकेडमी खोल ली, फिल्म एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया, तो उसमें ये पूरी तरह से बचेंगे कि साहब मैंने कोई रिटर्न कंसेंट नहीं दिया है, क्योंकि ट्रेडमार्क रिटर्न कंसेंट के बाद ही यूज किया जा सकता है वो एक्चुअल ओनर का। आप लोग कोई अच्छा पोयम लिख सकता है। इंडस्ट्रियलिस्ट भी बहुत कल्चर्ड और बहुत इनोवेटिव और बहुत थिंकिंग वाले होते हैं। तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कोई अच्छी किताब लिखता है, कोई पोयम लिखता है, कोई स्क्रिप्ट लिखता है, कोई नाटक लिखता है, या फिर आप जो हैं कोई गाना लिख सकते हैं, कोई म्यूजिक कंपोज कर सकते हैं। इन सबका आप जो है कॉपीराइट करवाइए और उसके बाद किसी फिल्म के नाम का भी कॉपीराइट करवा लीजिए, ताकि कल से राजपाल यादव जैसे हीरो यदि आते हैं तो आप बोलते हैं साहब 10 लाख 20 लाख दे दो। सलमान खान आएगा तो आप कहेंगे साहब 2 करोड़ से नीचे हम हमारा नाम नहीं बेचेंगे। तो ये IPR का जो पावर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको दिया है, इसमें हम लोगों का रीइंबर्समेंट मार्च 21 तक था, अभी वापस से बढ़ने वाला है। हम ट्रेडमार्क में 10,000 रुपए तक का रीइंबर्समेंट देते हैं। पेटेंट, डोमेस्टिक पेटेंट है तो हम 1 लाख का रीइंबर्समेंट देते हैं और इंटरनेशनल पेटेंट में 5 लाख का रीइंबर्समेंट देते हैं। साथ में आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट चीज सुनी होगी कि साहब नागपुरी ऑरेंज है, आगरे का पेठा है, कोल्हापुरी चप्पल है, तिरुपति का लड्डू है,
ठीक है, या हमारे इंदौर का रतलामी सेव है, झाबुआ एक प्लेस है उसका कड़कनाथ चिकन है, ये सब जीआई रजिस्टर्ड हैं। और जीआई रजिस्ट्रेशन, ज्योग्राफिकली इंडिकेशन रजिस्टर्ड यदि कोई प्रोडक्ट होता है तो इसमें हम 2 लाख रुपीस का रिइंबर्समेंट, जीआई एक कम्युनिटी राइट और सोसाइटी का राइट है, तो ये कम्युनिटी राइट और सोसाइटी राइट जो है हम इसके लिए 2 लाख का फंडिंग देते हैं। ये किसी इंडिविजुअल का नहीं हो सकता, ये ऑन द ये ग्रांट होता है बाय जीआई चेन्नई रजिस्ट्री ऑफिस। एंड ये जो है इसमें ये देखा जाता है कि स्किल क्या है, वो किसी प्रोडक्ट का बर्थ प्लेस इज कॉल्ड द जीआई, हर एरिया का, हर डिस्ट्रिक्ट का। और आपको ये मालूम होगा इस पर WTO नॉर्म्स, हम हमारे जीआई प्रोडक्ट को 1.5 गुना 1.5 टाइम्स ज्यादा रेट पर भी बेच सकते हैं। आज हमारे भारत का बासमती राइस हम लोगों ने 29,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है लास्ट ईयर, और नॉन बासमती का 37,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। ये जो जीआई का बेनिफिट हुआ है, अब पाकिस्तान, क्योंकि बासमती पे पाकिस्तान का भी उतना ही अधिकार होगा फ्यूचर में। क्यों होगा? क्योंकि जो बासमती राइस है वो गंगा के जो क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र, वहीं के से ही वो ग्रो हुआ है। और पहले जब भारत अविभाजित था, अनडिवाइडेड था, तो पाकिस्तान हमारा ही पार्ट था। तो लेकिन जैसे हमारी स्थिति है कि हम लोग जो है 47 से 2016 हम हमारी आईपीआर पॉलिसी नहीं बना पाए। किसी भी कंट्री का ग्रो होता है इनोवेशन, एक्सपोर्ट और आईपीआर, हम इन तीनों में पीछे रहे। आज इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है वो बिलो 2% है। चंद्रगुप्त मौर्य उस वक्त हमारा जो एक्सपोर्ट था कंट्रीब्यूशन वो 27% था ग्लोब में, आज हम 2% पे आ गए। तो हमें इनोवेटिव रहना चाहिए, और हमें जो अपना आईपीआर है, हम हमारी आप लोगों ने हल्दी घाटी, आप लोग यदि कोई हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे या आप लोगों ने 10th 12th में पढ़ा होगा, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध बहुत पहले हुआ था, लेकिन एक हल्दी घाटी का युद्ध 1995 में भी हुआ था, जब एक अमेरिकन कंपनी ने हल्दी को पेटेंट करवा लिया था कि साहब ये घाव भरने के काम आता है। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो महाशेलकर साहब थे डीजी, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें बोला और उन्होंने केस फाइट किया। 2 साल में हमें हमारी हल्दी का राइट वापस मिला, क्योंकि हमारे यहाँ वर्षों से, सदियों से हल्दी का यूज होता आया है। तो ऐसा हमारे पास बहुत सारे, आयुर्वेद हमारे यहाँ का है, लेकिन चाइना नंबर 1 है एक्सपोर्ट में, कंजम्पशन में अमेरिका है 41% के साथ, और यूरोप 21% के साथ सेकंड है। तो सोचिए आप, चीजें हमारी हैं, लेकिन हम यदि डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो कोई भी इसके ऊपर अधिकार कर लेगा। और जीआई इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो आप भी आपके डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, क्लाइमेट और पर्टिकुलर स्किल के साथ उसका यूज काफी समय से यदि हो रहा है और उसकी पेक्युलरिटी है, तो आप वो जीआई करवा सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसका आप बेनिफिट लीजिए। और गवर्नमेंट की स्कीम्स और ये सेमिनार वर्कशॉप जो सीआई एमएसएमई ने जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज करवाया है, तो ये ऐसे सेमिनार से ही इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? और वर्चुअल सेमिनार का तो ठीक है, लेकिन मेरा मानना है फिजिकल सेमिनार और इसके बाद नरिशमेंट हमको लगातार हमारे एंटरप्रेन्योर्स को देना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम उनको आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि हर स्टेप पे प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम स्टार्टिंग ट्रबल जो है उसको यदि हमने कैटर किया है थ्रू योर एसोसिएशन, थ्रू माय डिपार्टमेंट, थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, थ्रू एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, हमें एक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट्स में भी बहुत बेनिफिट है। आप यदि मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हैं, आपको लोन लेना है बैंक से, तो आपको 5% का इंटरेस्ट सब्वेंशन मिलता है। यदि बैंक का लोन 10% है, तो आपको 5% पे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट सब्वेंशन। साथ में आपने यदि कोई मशीनरी प्रोक्योर किया है, तो आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स के तहत जो कस्टम ड्यूटी है उसका पेमेंट से एग्जम्पशन मिल सकता है। बट आपको 6 टाइम्स जो कस्टम ड्यूटी सेव की है उतना एक्सपोर्ट करना है। आपने कस्टम ड्यूटी यदि 10 लाख सेव की है, तो आपको 60 लाख का एक्सपोर्ट 6 ईयर्स में करना है। तो आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा होता है और आप ये बेनिफिट ले पाते हैं। आप यदि एक्सपोर्ट में ऐसा प्रोडक्ट यूज करते हैं जो कि रॉ मटेरियल यूज करते जो इंपोर्टेड है और फिर उसका एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें भी जो कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, वो कस्टम ड्यूटी आपको वापस में रिटर्न हो जाती है। मैं अब सबसे इंपॉर्टेंट 1-2 चीजें मैं बताना चाहता हूँ। नंबर 1 है डिलेड पेमेंट। हमारे एमएसएमई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि साहब मैंने माल सप्लाई कर दिया, लेकिन बायर जो है पैसा नहीं दे रहा है।
अब वैसे तो गवर्नमेंट का एक्ट है कि 45 डेज के अंदर पैसा देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने एक तो जब भी आप काम करें तो आप जो है प्रॉपर तरीके से डिलीवरी चालान, परचेस ऑर्डर, रिसिप्ट, इन सब का डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। फोन पर बिजनेस मत करिए प्लीज, आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आप एक स्टेट फैसिलिटेशन काउंसिल है, हर स्टेट का एक फैसिलिटेशन काउंसिल है, उसमें एसोसिएशंस भी मेंबर होते हैं, हमारे ऑफिस के भी लोग मेंबर रहते हैं। तो उसमें आपका केस दर्ज कीजिए और उसमें जो है जो इंडस्ट्री कमिश्नर है, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज जो हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं और वही उसमें डिसीजन देते हैं। और फिर यदि आप सच हुए कि आपको बायर ने जानबूझ के विलफुल डिफॉल्ट किया या जानबूझ के आपको परेशान किया, तो आपको जो है 3 टाइम्स, यदि बैंक का इंटरेस्ट 6% है तो 18% के साथ आपको आपका पैसा वापस मिलेगा थ्रू फैसिलिटेशन काउंसिल। अब मैं ये कहता हूं कि यदि इसकी नौबत ही मत आने दो, कैसे होगा ये? इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिसेंटली लॉन्च पोर्टल है ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम। इस पोर्टल पे बायर, सेलर और फाइनेंसर तीनों रजिस्टर्ड होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्ट्रक्शन है जो भी गवर्नमेंट एंटाइटीज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कारपोरेट्स हैं जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, या एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो भी चाहे तो अपना रजिस्ट्रेशन ट्रेड्स पे कर सकते हैं। 1920 में कोविड पीरियड में ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, अब ये 6000 to 7000 इसका कॉस्ट है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सपोर्टेड ट्रेड पोर्टल्स हैं। आरबीआई है इसमें, एक्सिस बैंक भी है, आईसीआईसीआई बैंक भी है, एसबीआई भी है। तो इसमें आप जो है पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं तो आपने आपका माल बीइंग एमएसएमई सेलर किसी बायर को दिया, तो फाइनेंसर को जब आपने वो डिलीवरी चालान दिखा दिया, उनका इनवॉइस दिखा दिया, तो जो फाइनेंसर है विद इन 72 आवर्स आपको आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देता है और आप उसको नमस्ते कर दीजिए अपने बायर को। फिर फाइनेंसर बायर से जो भी आपका मैंडेट है कि 30 डेज, 40 डेज, 90 डेज, उस पीरियड के बाद बायर से वो डायरेक्ट ऑटो डेबिट उसके अकाउंट से कर सकता है, ऐसा उसमें प्रोविजन है। तो डिलेड पेमेंट की बात ही नहीं होगी, आपको तो दूसरे दिन ही मिल जाएगा। जैसा डिलेड पेमेंट का समस्या डोमेस्टिक एरिया में हुआ, ऐसे एक्सपोर्ट एरिया में भी एक्सपोर्ट फैक्टरिंग होता है, वो भी आपको करना चाहिए ताकि उसमें भी आपको कुछ 90% तो आपको 72 आवर्स में ही मिल जाता है, रिमेनिंग 10% जो है वो कुछ समय बाद मिल जाएगा। और जो भी उसका जो गैप लगेगा उसका इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, तो वो बहुत कम रहेगा। नहीं तो लोगों का 2 ईयर्स से लगाकर 10 ईयर्स तक लोगों के पेमेंट अभी तक नहीं मिले हैं। तो आप मैक्सिमम इन फैसिलिटीज का यूज कीजिए। और हमारे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये इंडस्ट्रियल मोटिवेशन कैंपेन का पार्ट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हमारा एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम EAP होता है जो महिलाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, 10 दिन का प्रोग्राम होता है। उसमें हाउ टू स्टार्ट इंडस्ट्री, लाइसेंसिंग इन इंडस्ट्री, गवर्नमेंट कंसेशन फैसिलिटीज, बैंक फाइनेंस, ये सब जो हैं ये आपको टॉपिक्स रहते हैं। एक्सपोर्ट मैनेजमेंट पे पुरुष से हम 200 रुपए फीस लेते हैं और वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो महिलाओं के लिए सारे प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है और मेल के लिए 100 या 200 रुपीज लेते हैं। तो आप इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करके अपना कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए। और आप ये मत सोचिए कि स्कीम बहुत सारी है। एक स्कीम जो फूड की है, PMFME, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज। आपके डिस्ट्रिक्ट का एक 1 डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट सिलेक्ट हुआ होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, 700 डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं। वो प्रोडक्ट यदि आप बनाते हैं तो 27 लाख का, 28,75,000 का यदि लोन लेते हैं तो 10 लाख का आपको उसमें सब्सिडी मिलता है। और ये भी PMFME पोर्टल से होता है। आप यदि वेयर हाउस बना रहे हैं तो वेयर हाउस बनाने के ऊपर जो लोन ले रहे हैं उस पर 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, जो 1 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है कोविड पीरियड में। और इसके अलावा यदि आप उस वेयर हाउस का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसपे भी 25% से 33.33% का सब्सिडी है थ्रू नाबार्ड। इसमें महिलाओं के लिए 33.33 है, या विलेज के लिए है, या SC/ST के लिए है, और अदरवाइज जनरल कैटेगरी के लिए 25% सब्सिडी। तो ये गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम फिर भी बची हुई है। तो आप पहले अपने आप डिसाइड कीजिए करना क्या है। और मेरे साथ आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से मैं मतलब फोन कॉल तो इतना नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन व्हाट्सएप से जो भी होगा आई विल हेल्प। अब मैं चाह रहा हूँ कोई क्वेश्चन आंसर हो, मैंने बहुत कुछ बताया है, कोई क्वेश्चन आंसर हो तो बड़ा अच्छा रहेगा।
Thank you, Nilesh ji. Good morning to you once again. I think आपने इतने सरलता से ये विषय को बताया, समझाया है, तो हमको लगा था कि अवेयरनेस सेशन होगा, बट मैं ये सेशन से पर्सनली मोटिवेट होके जा रहा हूँ, बिकॉज नॉट ओनली अवेयरनेस स्कीम्स के बारे में आपने मोटिवेट भी किया कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते. तो बहुत सारे आंसर्स तो आपने दिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस चैट में आए हैं और कुछ डायरेक्ट भी आए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसका आंसर संक्षेप में बताइए. तो पहला क्वेश्चन ये था कि most of the schemes are there, but banks don't respond many times, and practical execution for funding. So how do we address this? You said there is some number or some email ID where we can call. Yes. So और भी कुछ है जहाँ से easy हो, जैसे महाराष्ट्र से कोई है, कर्नाटक से कोई है, तो कितना easy हो सकता है आप तक पहुँचने से? लोकल नंबर कोई अवेलेबल होगा स्टेट में तो easy हो जाएगा इनसे बात करने में. पॉसिबल है? हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, और ये हमारे इंडिया की कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये. इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप बैंक्स के पास जाएं तो सबसे पहले उनको ईमेल करके अपना प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करें. सारे डॉक्यूमेंट ईमेल से, स्पीड पोस्ट से और रजिस्टर्ड पोस्ट से करें. सबमिशन के बाद आपको ऑटोमेटिक रिसिप्ट मिलेगा. यदि आप फिजिकल कर रहे हैं तो उनसे रिसिप्ट जरूर लें. हमारे एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं बेचारे, वो थोड़े से डरे हुए भयभीत रहते हैं कि अरे बैंक वाला बुरा मान जाएगा. इंडिया में तो रिसिप्ट मांगना मतलब ऐसा क्राइम करने जैसा हो गया. क्या आप कोई क्राइम कर रहे हैं यदि आपने रिसिप्ट किसी से मांगी है? तो रिसिप्ट जरूर लीजिए. नहीं तो क्या होता है, जब हम उसमें इंटीग्रेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बैंकर कहता है कि साहब इनका तो प्रपोजल ही नहीं आया है. तो सबसे पहले आप रिसिप्ट लीजिए. ऑफिशियल कम्युनिकेशन ईमेल से कीजिए. फिर बैंक्स के भी सेंटर्स होते हैं ग्रीवेंस रिजोल्यूशंस के, उसमें भी आप अप्लाई लेटर अपना इन्फॉर्म कीजिए. फिर हमारा जो चैंपियन पोर्टल है, champions@gov.in, जैसे हमारे पास इस प्रकार के केस आए तो हम क्या करते हैं, आपके ग्रीवेंस को उनके पास फॉरवर्ड करते हैं. उसके बाद उनसे फोन पे बात करते हैं. हमने कई मौकों पर देखा है कि बैंक्स की भी गलती है और एंटरप्रेन्योर्स की भी गलती है. एंटरप्रेन्योर्स भी कई चीजें हाइड करते हैं. तो भाई यदि आप प्रॉपर तरीके से और सही तरीके से करेंगे, मेरे बहुत सारे सीजीटी एमएससी का जो मैं परफॉर्मेंस बताऊंगा, 42,000 करोड़ लास्ट ईयर सैंक्शन हुआ है. उसके पहले 39,000 करोड़ हुआ. उसके पहले 36,000 करोड़ हुआ सीजीटी एमएससी का गारंटी. तो ये मिला है लोगों को. बस इसका प्रोसेस यही है कि आप सिस्टमेटिक तरीके से अप्रोच कीजिए अपना प्रोजेक्ट. हमें इंडस्ट्री लोन लेने के लिए नहीं डालना है, हमें प्रॉफिट के लिए इंडस्ट्री डालना है, हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी के कारण इंडस्ट्री डालना है. इस चीज और गवर्नमेंट सब्सिडी के कारण इंडस्ट्री नहीं डालना है. इन चीजों का ध्यान रखिए. परफेक्ट त्रिवेदी जी, और एक आध दो क्वेश्चन है, आपकी परमिशन हो तो पूछ सकता हूँ? जैसे आप सब सारे पूछ लीजिए, मैं तो इसीलिए बैठा हूँ आराम से. थैंक यू वेरी मच. सर एक क्वेश्चन ऐसा है कि आई एम एन अप्लाइड थिएटर आर्टिस्ट एंड वर्क विद स्कूल्स एंड एजुकेटर्स creating art-based and theatre-based curriculum through NEP 2020 policy. What can I apply for to scale up our work in rural India and also to help rural children as well? अच्छा, तो ये तो एक सर्विस इंडस्ट्री का एक क्वेश्चन है. तो ये सर्विस इंडस्ट्री में इनको PMEGP से स्किल बेस्ड कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो इन्हें 10 लाख का फंडिंग मिल जाएगा. और सीजीटी एमएससी में भी इनको फंडिंग है, क्योंकि सीजीटी एमएससी फॉर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर दोनों के लिए है. तो इनको 10 लाख रुपीज का फंडिंग के लिए, जिसमें सब्सिडी भी है. विलेज एरिया में यदि करेंगे तो इन्हें 35% की सब्सिडी है. ओके, ग्रेट. प्राइवेट बैंक जो है वो 2% इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं देता है. इस केस में एंटरप्रेन्योर ने क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है. देखिए साहब, ये जो प्राइवेट बैंकर्स हैं, ये तो आपको सीजीटी एमएससी के लिए भी मना कर देता है. मेरे सारे नए एंटरप्रेन्योर जितने भी आते हैं वो बोलते हैं सर, प्राइवेट बैंक वाला बोलता है यहाँ आओ मत. भाई देखो, ये सब कमर्शियल बैंक है और आरबीआई के अप्रूव्ड है. इन्हें आरबीआई का इंस्ट्रक्शन मानना है. ऐसे कुछ हो तो आप जरूर, मैंने तो ऐसे बहुत सारों केस में इंटरवेंशन करके, लेकिन क्या है कि 6.5 करोड़ एमएसएमई है और एक अकेला आदमी कितना करेगा. तो जितने भी तरीका ये है कि 2% का छूट जो है मार्च 21 तक था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके बाद उन्होंने एक्सटेंड नहीं किया है.
लेकिन मार्च 21 तक, फ्रॉम 2 नवंबर 18 टू मार्च 21, जिसका भी इंटरेस्ट सबवेनेशन का केस था उनको लेना चाहिए था वो बेनिफिट। लेकिन हमारे एंटरप्रेन्योर को कई बार हमने जब प्रोग्राम में बताया उसके बाद उन्होंने जो है उसको अप्रोच किया है। तो ये इंटरेस्ट सबवेनेशन अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली में एक्सटेंड नहीं किया है। आप लोग गवर्नमेंट पे प्रेशर लगाइए कि साहब ये 2% इंटरेस्ट सबवेनेशन इज वेरी गुड स्कीम, और इसको साल नहीं कम से कम 5 साल के लिए लगातार चलाइए, नहीं तो फिर वो ऑर्डर नहीं आया है, इस प्रॉब्लम में टाइम लग जाता है। एक और क्वेश्चन आया है जस्ट अभी, जब आप जैसे आंसर दे रहे हैं वैसे क्वेश्चंस भी ज्यादा आते जा रहे हैं, और ये एनकरेजिंग भी है बिकॉज पीपल वांट टू कनेक्ट विथ यू एंड आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस वेरी ओपनली। आप वेयर हाउस के लिए अभी कोई सब्सिडी है, अगर है तो वो क्या है? देखिए, वेयर हाउस पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कोविड में जो इकोनॉमिक मेजर्स में जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया था, उसके तहत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर या फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ का प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा है। तो उसमें आप यदि बैंक से लोन लेते हैं वेयर हाउस के लिए, तो लोन में 3% का इंटरेस्ट सबवेनेशन है। इसके अलावा आप जब वेयर हाउस बनाते हैं तो नाबार्ड की स्कीम है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, जो रीफाइनेंसिंग एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उसमें जो है 25% सब्सिडी अर्बन एरिया में है और 33.33 विलेज, SC ST OBC और वुमेन्स के लिए है और इन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। तो वो स्कीम है, आपको नाबार्ड के ऑफिस में जाके इंक्वायरी करनी पड़ेगी। ग्रेट, थैंक यू सर। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन भी है, उसमें ऐड कर रहा हूँ, आई एम श्योर काफी लोग। एक्सपोर्ट्स जो है वो हमेशा हमारे इंडियंस का थोड़ा चैलेंजिंग रहा है, दो जिसको पता है वो एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अवेयरनेस थोड़ा कम है। तो इसके सिलसिले में आप क्या बताना चाहेंगे ताकि हमारे जैसे लोग मोटिवेट हो जाए? और आपने जैसे बोला कि IPR जो है वो बड़ा चैलेंज है, 2% ही है, तो इसको कैसे बढ़ावा देके किसको ऐसे ऊपर लेके जाए? आपका सजेशन भी चाहूंगा और आपके थोड़े इनपुट्स भी चाहूंगा इसमें। आपने वेरिड क्वेश्चन किया है। मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेल का इंचार्ज रहा हूँ, और मैं जब से बना हूँ यहाँ पर 2019 में, मैंने एक चीज महसूस की है कि एक्सपोर्ट का नॉलेज गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी बहुत कम है, खासकर स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको। तो जब उनको ही नहीं होगा तो जो हमारा जो ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एंटरप्रेन्योर है, जब वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाएगा तो वो कहेगा साहब PO में चले जाओ, अपीडा में चले जाओ, दिल्ली बॉम्बे चले जाओ। जबकि एक्सपोर्ट पूरी तरह से ऑनलाइन है, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह से ऑनलाइन है। IEC 250 रुपए में मिलता है, RCMC 6,500 से 7,000 में मिलता है। फिर इसके बाद आपको GST रजिस्ट्रेशन, कस्टम रजिस्ट्रेशन आइस गेट पोर्टल पर होता है, जिसमें आप जो है सारे रीइंबर्समेंट और कंसेशंस क्लेम कर सकते हैं। DGFT का पूरा डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल है, इंडिया ट्रेड पोर्टल। इसमें आपके जो एसोसिएशन है उसका भी रोल होना चाहिए कि आप लोग भी प्रॉपर, जैसे मैं खुद मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे 25 डेज का ट्रेनिंग रखा था अलग अलग टाइम पर। तो उससे क्या होता है, हमें सीखना रेगुलर पड़ता है, क्योंकि एक्सपोर्ट में पर डे तो चेंजेस हो रहे हैं और पर डे चेंज सीनरियो भी चेंज हो रहा है। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया अभी देखिए तो हमारा जो कोविड में हमारे जो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स है उनका एक्सपोर्ट ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है, खासकर हमारे राइस का, हमारे ये जो मीट है, मीट प्रोडक्ट का भी बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हुआ है। फार्मास्यूटिकल्स का, वी आर नंबर 3 इन एक्सपोर्ट्स ऑफ जेनेरिक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो इसमें यह है कि बेसिक नॉलेज, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर, उसके ऊपर ट्रेनिंग होना चाहिए। को एक चीज मैं बता रहा हूँ, कोई भी यदि आपको ये कहे कि सर आप आपका प्रोडक्ट दीजिए, मैं आपको एक्सपोर्ट करवा दूंगा, मैं आपका माल बिकवा दूंगा, उस पर विश्वास मत कीजिए। बायर आप खुद ढूंढिए। बायर कैसे मिलता है? आप प्रोप्राइटरशिप से हटके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आइए, अपना वेबसाइट बनाइए, उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंटेशन और सर्टिफिकेशंस लीजिए। उसके बाद आप जो है ये हमारी इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होती हैं उसको पार्टिसिपेट कीजिए, वहाँ का एक्सपोजर लीजिए गवर्नमेंट का फंडिंग से, या सेमिनार वर्कशॉप जो होते हैं वो भी आप लोग भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से फंडिंग के लिए, 5 लाख 10 लाख रुपया फंडिंग का। तो आप इसको सेमिनार वर्कशॉप करवाइए और लोगों को इंटीग्रेट करिए। छोटे छोटे, जैसे आपके पास यदि 15 एक्सपोर्टर हैं तो लेट देम एक इंटरेक्शन हो जाए, ठीक है? तो ऐसे इंटरेक्शन से हम जो है आराम से कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, एक्सपोर्ट टैबू नहीं है वो जो बना रखा है लोगों ने। सर आई एम श्योर CMMSME आपको फिर दोबारा इनवाइट करेगा
क्योंकि बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, यहाँ से बात शुरू होने वाली है। मेरे 2 और क्वेश्चन है जो कॉमन है, जो आज एज एन एंटरप्रेन्योर हमारे लिए नहीं है बट आगे चल के आ सकते हैं, कि कोई कस्टमर है जिनको हम इनवॉइस रेज कर चुके हैं और 120 डेज हो गया और उसके पैसे नहीं आए, तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, तो इसमें आपका जो कस्टमर है, आप एमएसएमई एंटरप्रेन्योर है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर है? यस, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में, क्योंकि सर्विसेज ट्रेडर, में। हाँ सर्विसेज में सर्विसेज तो हाँ, क्योंकि और उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके पास है, है। तो आप क्या कीजिए, उसको 3 ईमेल कर दीजिए, है ना यार, 3 बार कम्युनिकेशन कर दीजिए हार्ड कॉपी से। उसके बाद यदि वो नहीं मान, कहाँ है यूनिट? सर ये बेंगलोर बेस्ड सिक्योरिटी कंपनी है, आईटी सर्विसेज में है। अच्छा, तो इनको एक बार आप बताइए कि देखिए साहब, मैंने एक बार हैदराबाद वाले का 5.5 लाख रुपए दिलवाया था। मैंने उससे सिर्फ फोन कहा था कि भाई देखो, ये आप फैसिलिटेशन काउंसिल में जाएंगे और उसमें तुमको 3 गुना इंटरेस्ट के साथ पैसा देना पड़ेगा, और इसमें आपकी इमेज भी डाउन होगी और आपको ब्लैकलिस्ट भी हो सकते हो। बाबा, उसका 2 महीने में पैसा आ गया। ओह अच्छा। तो आप उसको एक बार थोड़ा वर्बली भी समझा दो, फिर भी वो नहीं माने तो बोलना साहब, एमएसएमई समाधान पोर्टल जो है उस पर आप ऑनलाइन कंप्लेंट कीजिए, और एमएससी फैसिलिटेशन काउंसिल, आपका यूनिट कहाँ पर है? सर ऐसे तो सेंटर 2 जगह पे, मुंबई में भी है और दूसरा सपोर्ट सेंटर, और बैंगलोर बेस्ड है हेड ऑफिस। हेड ऑफिस बेंगलोर नहीं, मतलब बेंगलुरु में आप जिसने सप्लाई किया है, सर्विस दिया है, वो सर्विसेज दी है या वो बेंगलोर से? वो सर्विसेज जो है मतलब वो कैटर होती है मुंबई से, अच्छा लेकिन अच्छा, हेड ऑफिस जो है वो बैंगलोर का है। बेंगलोर में फैसिलिटेशन काउंसिल होगा, वहां पर आप एक केस कल फाइल कर दीजिए। मेरे पास बेंगलोर के डायरेक्टर साहब अकादास जी का नंबर है, आप उनसे भी सलाह ले लीजिएगा। तो वो जो है, आप ये प्रॉपर तरीके से जाएंगे तो वो उसको देना पड़ेगा पैसा 3 टाइम्स के साथ। ओके सर, एक और क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चंस खत्म नहीं हो रहे बिकॉज लोगों की उत्सुकता और बढ़ रही है। कोल्ड स्टोरेज के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए एमआईडीसी एरिया में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या फैसिलिटीज है? इसमें देखो, Cold दो डिपार्टमेंट फंडिंग देते हैं कोल्ड स्टोरेज में। एक है एनएचबी, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, और एक होता है एमओएफपीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, और 35% से 50% की सब्सिडी भी अवेलेबल है। तो वो, और उसमें क्या होता है कि आपको प्रोजेक्ट बैंक से अप्रूव करवाना पड़ता है ना। बैंक से अप्रूव हो गया, सैंक्शन हो गया, तो फिर आप ऑनलाइन सब्सिडी के लिए बैंक इनसे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं एमओएफपीआई या एनएचबी की वेबसाइट्स। तो कोल्ड स्टोरेज को एमएसएमई का स्टेटस मिल चुका है। बहुत पहले लोगों ने लड़ाई की थी कि भाई हमारा भी ये जो है एमएसएमई का स्टेटस है, तो एमएसएमई का स्टेटस है कोल्ड स्टोरेज। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। आपने जिस सरलता से, दोबारा एक बार बोलता हूँ कि इतने सारे वेबिनार्स अटेंड किए, लेकिन इतना इजी कन्वर्सेशन, इतना आसानी से आपने जो समझाया, आई एम श्योर हम सब ऑडियंस को इसका बेनिफिट डेफिनेटली होगा, और हम दोबारा आपके पास जरूर आएंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आगे की भागदौड़ स्वप्ना जी या भरत जी संभालें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। Bharat, can I request you to propose the vote of thanks? Thank you. You'll have to just unmute yourself and then go. Sridhar, can you unmute Bharat? Yes, doing it. Thank you. Bharat can unmute himself now. Thank you. Thank you, Deepak, and thank you, Nilesh ji, for this wonderful session. I think this was something which was quite overdue from CIMSME side.
All of us have been talking about the need for the government support, but what exactly is available? I think so elaborately, and more importantly, in such a simplistic format, it was very difficult to get, and we really thank you for that. I'm sure this session would. This is just the beginning, as Deepak said. There would be more questions coming up, more requests coming up, and I'm sure. So you will be with us for guiding us through all those questions and all those initiatives that we want to take. So on behalf of CII MSME, I thank you, Trivedi ji, for this wonderful session. On behalf of CII MSME Maharashtra Council, I also thank Santosh ji, Job, and the whole national team for giving us this opportunity to set up this this session and say make this session useful for all the participants across India. Thank you very much. Thank you, my colleagues in the Maharashtra team, for all the hard work that you have put in to make this say program successful. Thank you, and say have a nice day. थैंक यू वेरी मच आई थिंक आपके ईमेल आईडीज अगर आप भेज सकते हो चैट्स पे तो हम लोग वो रिकॉर्ड कर देंगे और जब भी नेक्स्ट इवेंट्स होगा हम आपको इनवाइट पर्सनली भेज देंगे सो थैंक यू ओवर टू यू सपना जी और यू डन Yeah, thanks a lot to everyone here. Thanks a lot to my team and the national team, as well as all the viewers who have been here. And I can see there have been many questions which are not, which could not be answered because of lack of time. But the email ID of Nilesh Trivedi ji, as well as his WhatsApp number, is already given in the chat box, so you can connect with them. And as Deepak just said, please put your email IDs in the chat box. So the next day, for any session, any informative session, we can connect to you and send some information about the session to you. Thanks a lot. Thank you.